Very good morning to all students. Yesterday we dealt with parties of the suit, right? While dealing with section 26, order 2 and 4, we came to know that while framing the suit, the parties is an essential element which need to be taken into consideration very specifically for the purposes of meeting out the requirement of the suit before the court in a particular manner. So, a parties of the suit plays a very important part. In our yesterday's lecture, we came to know that there may be a joinder of plaintiff, there may be a joinder of defendants, there may be a situation wherein one plaintiff and the one or more of the defendants could be there. There could be one of the plaintiff and there could be one of the defendant and two or more of the plaintiffs could be there. So, in our yesterday's lecture also, we dealt with the provision relating to the parties, and today also we are going to deal with the parties as well as the provisions relating to it. Now, whatever we have studied in our earlier lecture, certain important things which we came to know is the essential ingredient of suits where, which we have already studied, is there has to be a rival parties, that is to say plaintiff versus defendant होना चाहिए. Second, the subject matter in controversy होना चाहिए between both the parties. That is to say, there has to be some subject of dispute between both the parties. Next is there has to be a cause of action. There has to be a cause of action means what? The circumstances which has compelled the plaintiff, which has compelled one of the party to file a suit against the defendant. This cause of action is nothing but a foundation of the suit. This could be one or more between the same parties, this could be one or more. And in case there is no cause of action, suppose, then in that case we would say the suit cannot be maintained. No cause of action means what? A party do not have any of the legal right to approach to the court, then in that case the suit would not be maintained. Now in the suit there has to be a relief. The party have to ask a relief, the parties have to ask a relief. One party would be asking a relief against the other, so help or an assistance sought from the court. Relief means what? We are asking a help or an assistance to be given by the court. It is essential part of the suit. And in absence of relief also, अगर relief हम नहीं मांगने जाएंगे, if we do not ask for relief, then in that case our suit would not be tenable before the court. So this is nothing but the essential ingredients of the suit. Now let us understand जो हमने पहले पढ़ा कि parties to the suit जो order 1 में बोला गया है और जिसका डिटेलिंग जो है हमको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है. Parties means what? Actually party मतलब हुआ क्या? तो we knew that plaintiff versus defendant, these are nothing but a party. But there are the situations wherein there could be more than one plaintiff, there could be more than one defendant, there could be a defendant versus, there could be a plaintiff versus defendants, there could be a plaintiffs versus defendant. So this could be the situation. So let us see what do we mean by the term parties. सबसे पहले as we said there is a plaintiff and there is a defendant. Now who is plaintiff and who is defendant? Plaintiff is a person who brings a suit to enforce his legal right against the defendant. कौन होता है plaintiff? ये वो person होता है जो कि क्या करता है, सूट कोर्ट में लेके आता है. उसका सूट लाने का पर्पस क्या होता है? सूट लाने का पर्पस उसका अपना लीगल राइट एनफोर्स करना होता है. कौन सा लीगल राइट? वो लीगल राइट जो किसी लॉ में उसको दिया गया है और जिस लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है. सो गेटिंग हिज लीगल राइट एनफोर्सेबल बिफोर द कोर्ट, this particular person has decided to file a civil suit and therefore against a person whom he want to file a suit is now considered to be or would be called to be a plaintiff. So plaintiff is a person who brings the suit to enforce his legal right against the defendant. There now the defendant means what? Defendant जो है is means a person against whom the petition has been filed, against whom the suit has been filed. And defendant, what does he do? He mete out the accusation, he mete out the allegation which has been made against him by the plaintiff. So these are the person who would be called as a parties to the suit. Now let us see jointer of parties in a suit. We yesterday in our lecture we tried to understand how the parties could be joined and what are the situations wherein there could be a jointer of parties in a suit.
Now, joinder of parties in a suit. It means the joining of parties in a suit. In this case, several persons joined as a plaintiff or a defendant or both in one suit. अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम जॉइंडर ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज में क्या होगा, जॉइंडर ऑफ पार्टीज में बहुत सारे पर्सन जो हैं वो ज्वाइंट होंगे एज अ प्लेंटिफ करके या फिर एज अ डिपेंडेंट करके, ठीक है। एंड बोथ इन वन सूट, ऐसा भी हो सकता है कि एक सूट में एक पर्सन अगेंस्ट द अनदर पर्सन है या फिर उस सूट में बहुत से लोग एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिपेंडेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन जो होती है बेसिकली ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टीज की, वो ऐसी होती है कि देयर आर मोर देन वन इंडिविजुअल हैविंग अ कॉमन ग्रेवियंस। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, कॉमन ग्रेवियंस होता है। और देयर आर मोर देन वन इंडिविजुअल अगेंस्ट whom क्लेम इज मेड, या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट में हम क्लेम कर रहे हैं वो पर्सन एक से ज्यादा है। Now from the picture itself you could see in the first picture there are two plaintiffs and one defendant, right? And the another picture you could see there is one plaintiff and the two defendants. So these people who are two, they can join together as a parties. In the first picture the plaintiff has joined together, in the second picture the defendant has joined together. Now in relation to the grievance there may be a different situation. हम अगर ग्रेवियंस को ध्यान में रखें तो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। अब इफ अ सिंगल इंडिविजुअल इज हैविंग अ ग्रेवियंस अगेंस्ट द अनदर सिंगल इंडिविजुअल, तो सिचुएशन कैसी रहेगी, सिंगल प्लेंटिफ वर्सेस सिंगल डिफेंडेंट। एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्या था, ग्रेवियंस था, तो सिचुएशन इज सिंगल प्लेंटिफ वर्सेस सिंगल डिफेंडेंट। If a single individual may have a grievance against several individual, एक single individual का दो या दो से ज्यादा लोगों के अगेंस्ट में grievance हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिनेरियो क्या रहेगा, सिंगल प्लेंटिफ वर्सेस इंडिविजुअल सूट अगेंस्ट ईच डिफेंडेंट लीडिंग टू सेवरल सूट्स। ये जो सिंगल इंडिविजुअल है ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट क्योंकि एक से ज्यादा है तो क्या ऑप्शन इसके पास में अवेलेबल है, ये सारे डिफेंडेंट्स को एक ही सूट में पार्टी बना सकता है या फिर अलग अलग डिपेंडेंट के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट सूट डाल सकता है। अगर उसने इंडिपेंडेंट सूट डालने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो क्या होगा, बहुत सारे सूट्स फाइल करेगा प्लेंटिफ। लेकिन यदि मान लीजिए उसने एक ही सूट फाइल करने का तय किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सारे डिपेंडेंट्स को एक ही सूट में पार्टी बनाना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंट करके। ऐसे में पैसे की भी बचत होगी और कोर्ट का टाइम भी बचेगा। So this is a scenario wherein single individual is having a grievance against one or against more than one individuals, that is to say called as a several individuals, and these several individuals would be called as a defendants. Now after going through this provision, let us see what are the situations wherein the several individuals may have a grievance against a common single individual। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो एज अ प्लेंटिफ करके आ जाएं टुगेदर और उनको ग्रेवियंस है अगेंस्ट अ सिंगल डिफेंडेंट। देन इन दैट केस ईच इंडिविजुअल में फाइल एन इंडिपेंडेंट सूट, हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर सकता है वही एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट के अगेंस्ट में। ऐसा करने से भी क्या हो जाएगा, जैसा अर्लियर सिचुएशन में हुआ था, बहुत सारे सूट्स फाइल हो जाएंगे एक ही इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, है ना। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि ये जो सेवरल इंडिविजुअल्स हैं ये सब इकट्ठा आ जाएं जिनको कॉमन ग्रेवियंस है और अगेंस्ट द इंडिविजुअल, और ये सब मिलके एक सूट फाइल करें अगेंस्ट द कॉमन डिपेंडेंट, और इस तरीके से टाइम की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी, ठीक है। Now let us see, several defendant may have a common grievance against several individuals। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको common, here the defendant has to be a plaintiff one, यहाँ पे several जो persons हैं उनको common grievance है against several individuals। ऐसे में हर एक इंडिविजुअल प्लेंटिफ जो है वो इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर सकता है हर एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट के अगेंस्ट में। ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत सारे सिविल सूट्स फाइल होंगे, है ना, सेम ग्रेवियंस को लेके। और ऐसे में इस सिचुएशन में बहुत से, अब कौन से कोर्ट में मैटर फाइल होता है, कौन सा जज उसको किस तरीके से देखता है, कितने मैटर्स में रिलीफ मिलता है, कितने में नहीं मिलता है, फिर कितने में अपील जाएगी, रिवीजन होगा, रिव्यू होगा, तो ये सारे सिचुएशंस को टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्लेंटिव्स हैं जिनको की कॉमन ग्रेवियंस अगेंस्ट द डिपेंडेंट, वो सब क्या हो सकते हैं, जॉइन टुगेदर हो सकते हैं और फाइल कर सकते हैं वन सूट, जिसमें कि बाकी अदर जिनके अगेंस्ट में हम क्लेम कर रहे हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, एज अ डिफेंडेंट्स करके पार्टी बना देंगे। तो ये सिचुएशन हो गई जहाँ पे सेवरल प्लेंटिफ वर्सेस सेवरल डिपेंडेंट बट ओनली वन सूट, ठीक है।
नाउ लेट अस सी ऑर्डर और रूल के हिसाब से as per the provision of Bare Act what has been provided the joinder of plaintiffs जो हमने बोला कि plaintiff joined हो सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ situations होना जरूरी है which we have already discussed in our earlier lecture but still will be revising it क्या दिया हुआ है remain joinder of plaintiffs order 1 rule 1 and 2 the person can be joined in one suit as a plaintiff on the fulfillment of the following conditions joinder of plaintiffs हमने इसके पहले पढ़ा होना जरूरी है that is helpful टाइम बचेगा पैसा बचेगा लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है सबसे पहले इफ एनी ऑफ द राइट टू रिलीफ अवेलेबल टू ईच प्लेंटिफ अराइजेस आउट ऑफ द सेम एक्ट और अ ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ एक्ट और अ ट्रांजैक्शन यानी वही लोग एज अ प्लेंटिफ करके ज्वाइंट हो सकते हैं किसी एक सूट में जहां पे उन सबको जो मिलने वाला राइट है या उन सबको जो बेसिकली रिलीफ क्लेम करने चाह रहे हैं वो सब रिलीफ जो है वो अराइज हो रहा है सेम एक्ट या फिर सेम ट्रांजेक्शन से या फिर सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन नाउ सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है एक एक्ट से अराइज होने वाले अदर एक्ट्स या एक ट्रांजेक्शन से अराइज होने वाले अदर ट्रांजेक्शन जब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वी कॉल द सेम टू बी सीरीज ऑफ एक्ट एंड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तो ऐसे किसी एक्ट या ट्रांजेक्शन ऐसे किसी सीरीज ऑफ एक्ट या फिर ट्रांजेक्शन से अगर मान लीजिए कोई राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है तो जिन भी लोगों को ये राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है वो सब लोग एज अ प्लेंटिफ करके ज्वाइन कर सकते हैं मैटर में इफ सच अ पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ फैक्ट वुड अराइज लेकिन यदि मान लीजिए इन लोगों ने ऐसा ऑप्ट किया कि नहीं नहीं भाई हम अपना सेपरेट सूट फाइल करेंगे हम इंडिविजुअल लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा हो सकता है कि भाई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो जाए और ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट बोल दे कि नहीं सबको एक साथ लाओ कंपाइल करो और हम सारे पिटिशंस को एक साथ सुनेंगे ऐसा भी हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन बाद में आए उससे बेटर है कि हम क्या कर दें उससे बेटर है कि हम पहले ही अगर पॉसिबिलिटी बनती है सारे प्लेंटिव्स को राइट टू रिलीफ अवेलेबल है सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है और जिसके लिए सिचुएशन ऐसी कि सेपरेट सूट लाया जा सकता है क्योंकि उसमें कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज है देन इन दैट केस ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सारे लोग जो हैं एज अ प्लेंटिव करके ज्वाइंट हो सकते हैं एक ही मैटर में Even upon the satisfaction of the above terms and conditions, the court may ask to file a separate suit if the court is of the view that the joinder may cause a delay of the trial. Here it is joinder. Joinder may cause a delay of trial. अगर ये सारी सिचुएशंस होने के बावजूद भी सपोज अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सेपरेट सूट लेके आओ सेपरेट सेपरेट सूट फाइल करो क्योंकि ये जॉइंडर ऑफ बेसिकली प्लेंटिव्स हो जाने से कॉज हो सकता है डिले ट्रायल में और पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो बेटर है भाई अलग अलग सेपरेट सूट फाइल करो तो ऐसी अगर सिचुएशन है देन इन दैट केस आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट हम क्या कर देंगे कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सेपरेट सूट फाइल करेंगे और एल्स सिचुएशन में जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक ही सूट में अगेंस्ट द डिपेंडेंट अपना सूट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं Next is let us see the situation wherein the joinder of dependents could be there. So order 1 rule 3 and 3A deals with the joinder of dependents. Now let us see joinder of dependents होने के लिए भी कुछ conditions होना जरूरी है the same conditions है सबसे पहले हम plaintiff वाले में plaintiff को relief का right था यहाँ पे defendant के against में relief का right available है So if any of the right to relief against each defendant arise out of the same act or a transaction or a series of act or a transaction and if such a person against whom a suit is brought separate suit any common question of law और अ फैक्ट वुड अराइज यानी कि अगर मान लीजिए ये जो पर्सन है इनके अगेंस्ट में हमने सेपरेट सूट फाइल किए तो क्या होगा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं जॉइंटर ऑफ डिपेंडेंस का प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं और एक ही सूट में भले ही एक प्लेंटिफ हो वो क्या कर सकता है बहुत सारे लोगों को डिपेंडेंट करके ज्वाइन कर सकता है उसमें एज अ अपोजिंग पार्टी लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इस तरीके से जॉइंडर ऑफ पार्टीज कर देने से जॉइंडर ऑफ डिपेंडेंट कर देने से क्या होगा डिले होगा ट्रायल में देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकता है कि सेपरेट सूट फाइल करो Now let us see court may give judgment for or against one or more of the joint parties. Order 1 rule 4. Order 1 rule 4 क्या बोलता है Order 1 rule 4 ये बोलता है कि देखिए आपने joinder of plaintiffs भी कर लिए joinder of defendants भी कर लिए बट जब बात आएगी जजमेंट देने की तो आप कैसे ग्रांट करेंगे क्योंकि हर एक जो पर्सन है वो अलग अलग कैपेसिटी में या अलग अलग डिग्री में उस पर्टिकुलर एक्ट में या ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है
या फिर अलग अलग रिलीफ की जो डिग्री है वो हम मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए कि डिफेंडेंट ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे और वो मुझे वापस नहीं किए, ये हो गया डिफेंडेंट राम। अगर डिफेंडेंट लक्ष्मण ने मुझसे 60,000 रुपए लिए थे, वो उसने मुझे वापस नहीं किए, तो मैंने दोनों के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी का मैटर डाला। लेकिन जब जजमेंट पास हुआ कोर्ट का, तो डेफिनेटली राम के अगेंस्ट में अमाउंट वाज लेस एंड दी लक्ष्मण के अगेंस्ट में अमाउंट वाज मोर। तो जो जजमेंट होगा वो टू द एक्सटेंट राम के 30,000 के लिए अप्लाई होगा और टू द एक्सटेंट लक्ष्मण के 40,000 के लिए अप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है डिग्री ऑफ द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ रिलीफ में डिफर फ्रॉम डिपेंडेंट टू डिपेंडेंट, बट यस डेफिनेटली सारे डिपेंडेंट्स के ऊपर ये जो रहेगा जजमेंट जो है ये बाइंडिंग रहेगा। नाउ लेट अस सी, द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू गिव जजमेंट फॉर वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ फॉर अ रिलीफ एज पर देयर एंटाइटलमेंट। एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो जो राइट वो एंटाइटलमेंट रखते हैं कोर्ट उनको लेके जजमेंट दे सकता है, इंडिविजुअली जजमेंट दे सकता है, एक ही डिक्री में इंडिविजुअली जजमेंट दे सकता है उनको। In the similar way, the court is empowered to give judgment against one or more of the defendant according to their respective liabilities. उसी प्रकार से defendant की liabilities को देखते हुए, हर एक individual defendant की liabilities को देखते हुए उनको क्या दिया जा सकता है, judgment दिया जा सकता है एक ही डिग्री में। In other words, it means the joinder of defendants does not mean the court shall necessarily hold each of them equally liable. डिफेंडेंट्स जॉइंडर हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो है सबको इक्वली लायबल रखेगा। हो सकता है प्लेंटिफ कुछ एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट में अपना केस प्रूफ ही ना कर पाए तो वो डिफेंडेंट फ्री हो जाएगा, जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में प्रूफ कर पाएंगे वो डिफेंडेंट लायबल ठहराएगा। तो इक्वली लायबल रहेंगे डिफेंडेंट ऐसा नहीं है, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं करके इक्वली लायबल रहेंगे ऐसा नहीं है। तो नाउ लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हमने देख लिया जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स भी होते हैं, हमने देखा जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स भी होते हैं। नाउ लेट अस सी नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी, क्योंकि इन्हीं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स या जॉइंडर ऑफ डिपेंडेंट्स में ये जो पार्टीज हैं बेसिकली प्लेंटिव्स या फिर डिपेंडेंट, ये इधर नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है। तो नॉर्मली दोनों भी तरीके की पार्टी कोर्ट में हो सकती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेसेसरी पार्टी कौन सी होगी और प्रॉपर पार्टी कौन सी होगी। हमारे अर्लियर लेक्चर में भी हमने नेसेसरी पार्टी मतलब क्या एंड प्रॉपर पार्टी मतलब क्या देखा था, बट यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं नेसेसरी पार्टी, क्योंकि हमने यहाँ पे जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड जॉइंडर ऑफ डिपेंडेंट्स बनाए हैं वन सूट में, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग आने वाले हैं या फिर इवन सिंगल इंडिविजुअल भी कर रहा है, तो वेदर वो नेसेसरी पार्टी है या नहीं, क्योंकि वहां पे नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी होने से ही जो डिक्री पास होगी उस पर्टिकुलर मैटर में वो डिक्री एनफोर्सेबल रहेगी। सो फ्रॉम दैट एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द डिक्री पॉइंट ऑफ व्यू नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी समझना जरूरी है। नाउ लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय द टर्म नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी इज वन whose presence is indispensable to the constitution of the suit, निहायत ही जरूरी है इस पर्टिकुलर पार्टी का रहना सूट में, against whom the relief is sought and without whom no effective order is passed। ये नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट में हम जो है रिलीफ मांग रहे हैं और इस पार्टी की एब्सेंस में किसी भी तरीके का इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा। क्यों इस पार्टी के एब्सेंस में किसी भी तरीके का इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा, क्योंकि यदि पार्टी प्रेजेंट नहीं है या मान लीजिए पार्टी ही हमने कोर्ट में नहीं बनाई है तो वॉट एवर द कोर्ट पासेस एन ऑर्डर वुड नॉट बी हैविंग एनी वैल्यू। देयरफॉर अगर कोर्ट के ऑर्डर को इफेक्टिव बनाना है, इफेक्टिव बनाना मतलब क्या, उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो भी पार्टी बनाए यानी जो डिपेंडेंट बनाए वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए। नाउ लेट अस सी हु इज प्रॉपर पार्टी and definitely in necessary party, in absence of necessary party no degree can be passed। हम कोई भी तरीके की डिग्री पास नहीं कर सकते हैं अगर नेसेसरी पार्टी मैटर में नहीं है तो। Now let us see what is by the term proper party in whose absence an effective order could be passed। proper party के absence में हम effective order पास कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्टी का प्रेजेंस जरूरी होता है कंप्लीट और फाइनल डिसीजन देने के लिए मैटर में। कौन से क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है बेसिकली प्रोसीडिंग्स में, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, उसको यदि हमको कंप्लीटली एंड फाइनल डिस्पोज ऑफ करना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम प्रॉपर पार्टी को मैटर में रखें और यदि मान लीजिए वो उस वक्त एब्सेंट भी है तो भी उसका प्रेजेंस नेसेसरी रहेगा कंप्लीट एंड फाइनल डिस्पोजल के लिए। In absence of proper party, a decree can be passed so far as it relates to the parties before it। ठीक है।
नाउ जॉइंडर ऑफ डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डाउट, अगर मान लीजिए हमको डाउट है कि यार ये डिपेंडेंट है या नहीं, इसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड under order 1 rule 6 and 7. Now what is the provision? Let us see. The plaintiff enjoys an option to join all or any of the person as a party to the same suit who are liable in any one contract or a bill of exchange, undies or a promissory note. कहने का मतलब है कि जो लोग भी पर्सन्स लायबल हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, हुंडीज में या प्रॉमिसरी नोट को लेके, वो सारे लोगों को प्लेंटिफ अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए क्या कर सकता है, एक ही सूट में पार्टी बना सकता है। ऐसे में जॉइंडर ऑफ डिपेंडेंट्स हो गए। लेकिन प्लेंटिफ जो है यदि उसको डाउट है, then in that case the plaintiff may also join two or more of the dependents if he is in a doubt as to person against whom he is entitled to obtain a remedy। यदि उसको डाउट है कि मुझे इन दोनों में से किसके अगेंस्ट में रेमेडी अवेलेबल है, इस बात को लेके उसको डाउट है, क्योंकि प्रेजेंट कोई सिचुएशन में कोई प्रेजेंट कोई और कर रहा है और उस बंदे के पीछे कोई और है, स्क्रीन के सामने कोई और है, स्क्रीन के पीछे कोई और है। तो इस तरीके की सिचुएशन में प्लेंटिफ में बी अंडर डाउट कि एक्चुअली डिपेंडेंट कौन है, किसके अगेंस्ट में मुझे रेमेडी चाहिए। तो ऐसे वक्त में वो क्या कर सकता है, वो दोनों भी लोगों को ज्वाइन कर सकता है एज अ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट 1 एंड डिपेंडेंट 2। और ऐसी सूरत में लेटर ऑन इट वुड बी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन ये तय किया जाएगा कि विच ऑफ द डिपेंडेंट इज लायबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट इज लायबल। नाउ अभी जैसा हमने बोला कि हमें नहीं पता है कि कौन एक्चुअली लायबल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बहुत से लोग एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिपेंडेंट करके मैटर्स में ज्वाइंट होते हैं, बट हम सबके सब कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम अपने तरफ से किसी एक पर्सन को अपीयर करवा देते हैं, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं। इसका जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 1 रूल 8 में दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। यू ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन ओवर दिस रिप्रेजेंटेटिव सूट। नाउ लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द सूट ऑट टू बी ज्वाइंट एज अ पार्टीज टू इट। हमने देखा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं सूट में वो सबको ज्वाइंट होना चाहिए एज अ पार्टी टू द सूट, सो दैट जो भी मैटर इन्वॉल्व है वो कैसा हो जाए, फाइनली डिसाइड हो जाए। बट रूल 8 जो है वो एक्सेप्शन है इस बात को। ये क्या कहता है कि जब बहुत सारे लोग सिमिलरली इंटरेस्टेड हो सूट में, तो उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन द डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट इशू वो स्यू कर सकते हैं या फिर स्यूड हो सकते हैं मैटर में। द रिप्रेजेंटेटिव सूट इज दैट सूट विच इज फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ और द अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट ये वो सूट होता है जो कि फाइल किया जा सकता है या फिर जिनके अगेंस्ट में फाइल किया जा सकता है किसी एक पर्सन के बिहाफ में या फिर बहुत सारे सेवरल पर्सन के बिहाफ में जिनके पास में सेम इंटरेस्ट है सूट में, और ये लोग जो है रिप्रेजेंट होना चाहते हैं किसी एक पर्सन के द्वारा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पीआईएल वगैरह में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में होता है। नाउ लेट अस सी, जब हम बात कर रहे हैं रूल 8 की, तो रूल 8 का अप्लाई होने के लिए या रूल 8 के प्रोविजंस को अप्लाई होने के लिए ये 4 कंडीशंस जो है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। विच आर दीज 4 कंडीशंस? फर्स्टली देयर हैज टू बी न्यूमरस पार्टीज। Second, the parties must have a same interest, relief or a grievance in the suit. Third, the permission must have been granted or the direction must have been given by the court. And fourth, जिनको भी हम basically represent कर रहे हैं उन सबको हमको notice देना जरूरी है। Notice must have been issued to the parties whom it is proposed to represent in the suit। जब ये 4 conditions fulfill हो जाती है तो वहाँ पे representative suit का provision apply हो जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट का बेसिकली पर्पस क्या होता है, तो से हम टाइम सेव करते हैं, एक्सपेंसेस सेव करते हैं। हम एक ही सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल में कॉमन क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो सब हम ट्राई करते हैं, अलाउ करते हैं उनको। इट अवॉइड्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट and common right or interest in the community or a member of an association can be heard in one suit. So this is the purpose of the representative suit. Now let us see what has been provided under order 1 rule 9. It says that non-joinder or misjoinder of parties. Student, in our yesterday's lecture also we have dealt with this particular concept, non-joinder and misjoinder of the parties. Now let us see what do we mean by the term non-joinder and misjoinder of the parties. Where a person who is necessary or a proper party to a suit has not been joined as a party to the suit, तो उसे हम क्या कहेंगे? It is the situation of non-joinder.
ऑन दी अदर हैंड अगर दो या दो से ज्यादा लोग जिनको ज्वाइंट है एज अ प्लेंटिफ या फिर डिपेंडेंट इन वन सूट इन कॉन्ट्रवेंशन टू द ऑर्डर 1 रूल 2 एंड 3, देन इन दैट केस उसे हम कहेंगे मिस जॉइंटर। यानी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनको हमने नहीं भी बनाया रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ा रहता, बट क्योंकि अब बना दिया है तो ये हो गया सिचुएशन मिस जॉइंटर का। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि सपोज अगर मान लीजिए नॉन जॉइंटर या मिस जॉइंटर आपने कर दिया है तो इस ग्राउंड के ऊपर सिंपली आपका मैटर डिसमिस नहीं होगा, इस ग्राउंड के ऊपर सिंपली आपका मैटर डिसमिस नहीं होगा। दिस इज नथिंग बट अ बेसिकली जनरल रूल रिलेटिंग टू इट। नाउ लेट अस सी इफ अगर हमने रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे मैटर फाइल कर दिया है ना, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। ऑर्डर 1 रूल 10 बताता है कि अगर हमने मान लीजिए रॉन्ग प्लेंटिफ मतलब मेरे पास राइट अवेलेबल नहीं था बट मैंने फिर भी सूट फाइल कर दिया, तो ऐसे वक्त में डिफेंडेंट जब ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकता है कि एडिशन करो प्लेंटिफ का, जिसको मोर बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ राइट है, जिसको प्रायोरिटी में राइट दिया जाना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को आप प्रोड्यूस करें एज अ प्लेंटिफ करके। तो उस सिचुएशन में इधर हमको दूसरे पर्सन को इस पर्टिकुलर मैटर में ऐड करना पड़ेगा या फिर वो मुझे सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरी जगह पे वो एज अ प्लेंटिफ करके आ जाएगा। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट। नाउ लेट अस सी द प्रोविजन रिलेटिंग टू दिस। If after the filing of the suit the plaintiff discovers that he cannot get a relief जो वो मांगना चाहता था बिना किसी दूसरे पर्सन को ज्वाइंट किए एज अ प्लेंटिफ, और या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे प्लेस इंस्टेड ऑफ मी, मेरी बजाय कोई और पर्सन इज एक्चुअली मोर एंटाइटल to get this relief which I am asking for, then in that case application for addition or substitution of the plaintiff can be made. To bring a case within the sub rule दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले सूट जो है वो रॉन्ग पर्सन ने फाइल किया है अंडर बोनाफाइड मिस्टेक। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैंने बोनाफाइड मिस्टेक में देखा जाए तो सूट फाइल किया। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ प्लेंटिफ जो है वो नेसेसरी है ताकि रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज सेटल डाउन किया जा सके, और किसी भी पर्सन को जिसको भी हम ऐड कर रहे हैं एज अ प्लेंटिफ करके हमें बिना उसके कंसेंट ऑब्टेन किए उसको प्लेंटिफ करके ऐड नहीं करना है। जिस तरीके से हम सूट फाइल करने के बाद में पार्टीज को ऐड कर रहे हैं उसी प्रकार से हम एडेड पार्टी को हटा भी सकते हैं, स्ट्राइकिंग भी कर सकते हैं। स्ट्राइक मतलब हटाना। सब रूल 2 क्या बोलता है? रूल 10 empowers the court to add any person as a party to the suit on either of two grounds, that he ought to have been joined as a plaintiff or a defendant and is not so joined. दूसरा, that without his presence the question involved in the suit cannot be completely decided. ये हमने अभी देखा। सिमिलरली कोर्ट एम्पावर है कि वो स्ट्राइक आउट भी कर सकता है किसी भी पार्टी का जो कि इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया गया है, जिसको रहना मैटर में उतना जरूरी नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट हमको मैटर जो है स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। नाउ पावर कैसे कोर्ट एक्सरसाइज करेगा? तो कोर्ट जो है ये पावर किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में एक्सरसाइज करेगा, और ये जो है एक्सरसाइज कर सकता है कोर्ट सुमोटो भी या फिर अपोजिट पार्टी के एप्लीकेशन के ऊपर भी, या फिर दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो एप्लीकेशन मूव कर रहा है उसके कहने पर भी एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ कर सकता है और इस तरीके से एडिशन या स्ट्राइकिंग आउट कर सकता है इन अप्रोप्रिएट केसेस एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट। ऐसा करते वक्त में कोर्ट जो है वो देखेगा कि एडिशन या स्ट्राइकिंग आउट करने के लिए केस अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और ऐसा करते वक्त में कोर्ट जो है यानी एडिशन या स्ट्राइकिंग आउट करते वक्त में कुछ टर्म्स या कंडीशंस भी पार्टीज के ऊपर इम्पोज कर सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अलाउ कर सकता है। नाउ डिफेंडेंट जब ऐड करना है तब क्या होगा? अभी तक तो हमने देखा प्लेंटिफ कैसे ऐड किया जाता है, या डिफेंडेंट जब ऐड करना है तो यस, जब डिफेंडेंट ऐड करना है तो प्लेंट जो है अकॉर्डिंगली हमको अमेंड करना पड़ेगा। अमेंडेड कॉपीज ऑफ द प्लेंट एज वेल एज द समन्स ये हमको सर्व करना पड़ेगा जिन भी लोगों को हमने न्यू डिपेंडेंट्स जो हैं जिनको भी हमने मैटर में ऐड किया है। नाउ अगर मान लीजिए अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स, यानी अभी हम अपीयरेंस कर रहे हैं बहुत सारे प्लेंटिफ का या फिर डिपेंडेंट्स का, कैसे इनका अपीयरेंस होगा ये प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 1 रूल 12 में। इफ देयर आर सेवरल प्लेंटिफ्स इन अ सूट, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं सूट में और उनमें से कोई एक जो है यदि हम अथोराइज करते हैं किसी पर्सन को कि वो अपीयर हो सकता है हमारे बिहाफ में, प्लीड कर सकता है या फिर एक्ट कर सकता है हमारे बिहाफ में,
सिमिलरली रूल 12 जो है वो अप्लाई होगा जहां सेवरल डिपेंडेंट्स है मैटर में, इनमें से कोई एक डिपेंडेंट जो है उसको ऑथोराइज किया जाएगा बाकी अदर्स के द्वारा कि वो उन अदर डिपेंडेंट्स के लिए अपीयर हो सकता है, प्लीड कर सकता है और एक्ट कर सकता है मैटर में, प्रोवाइडेड ये जो अथॉरिटी है ये राइटिंग में दी जानी चाहिए। जिसको भी हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी तरफ से अपीयर हो, प्लीड हो या एक्ट करो, उसको हमने राइटिंग में अथॉरिटी देनी है। और ये राइटिंग में अथॉरिटी मतलब कि ड्यूली साइंड बाय द प्लेंटिफ और बाय द डिपेंडेंट्स जो भी उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, एंड द अथॉरिटी मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट। और ये अथॉरिटी हमने क्या करना चाहिए, कोर्ट में फाइल करना चाहिए। नाउ ये सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या यहाँ पे कहीं बीच में हमें किसी भी स्टेज में ऑब्जेक्शन लेने का राइट है क्या? तो यस, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज को लेके हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज या फिर इवन नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज को लेके ऑब्जेक्शन जो रेज कर सकते हैं उसका प्रोविजन ऑर्डर 1 रूल 13 में बताया गया है। अब नाउ ऑर्डर 1 रूल 13 में जो बताया गया है दैट इज इन रिस्पेक्ट टू बोथ द नॉन जॉइंडर एंड द मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। अब ये जो ऑब्जेक्शन है ये हमको कब लेना है, ये हमको रेज करना है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करते हुए। कहने का मतलब है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, डेफिनेटली किसी भी स्टेज में हो सकता है, लेकिन सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी इसमें, अगर हमको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की स्टेज के आसपास हैं हम, तो हमको प्रायर टू द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, प्रायर टू द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हमको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो क्या माना जाएगा, अगर हमने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि वी हैव वेव्ड अवर राइट टू रेज द ऑब्जेक्शन, और फिर मैटर जो है वो बाकी स्टेजेस में ऐसा ही चलता रहेगा। आगे जाके यदि हम मान लीजिए इस मैटर से जो इस मैटर में जो भी डिक्री पास होगी इससे यदि हम ये रहे अग्रीव्ड रहे, तो हम फिर बाद में अपील में या रिवीजन में इस बात को चैलेंज नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इसीलिए जो कोई भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग दी पार्टीज को ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस जॉइंडर या फिर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज को लेके, पार्टीज को ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टीज को नॉन ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे ऑब्जेक्शन जो है हमको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में एक्सरसाइज करने चाहिए। और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मीन्स व्हाट, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज बिटवीन द पार्टीज। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऐसा माना जाएगा कि वी हैव waived our right. So students, today we have completed the entire provisions relating to order 1. We have completed order 1 rule 1 to rule 13, and I hope you have understood the concept. Thank you for attending this session. Thank you very much.